Which of the following statements is false? फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है statistics is derived from the Latin word status. So Latin word status is correct. Statistics is derived from Italian word statista. So the Italian word is statista. So ये भी correct है. Statistics is derived from the French word statistique. अब यहाँ पे फ्रेंच वर्ड दिया है लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया है ये जर्मन वर्ड दिया हुआ है. यहाँ पे एक्चुअल होना चाहिए था स्टैटिस्टिक एंडिंग इन QUE. तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Statistics is defined in terms of numerical data in the singular sense, plural sense, either A or B या both A and B. अब सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू द टेक्निक और द मेथड टू गैदर डेटा, टू एनालाइज डेटा. However, in plural sense में statistics refers to the numerical data. तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. Statistics is applied in economics, business management, commerce and industry, and last option है all of these. तो ये statistics हर फील्ड में अप्लाई होता है जो यहाँ पे दिए हुए हैं. इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है. इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. Statistics is concerned with qualitative information, quantitative information, A or B, and last option है both A and B. So statistics दोनों information से concern रखता है, qualitative as well as quantitative. इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, both A and B. An attribute is a qualitative characteristics, a quantitative characteristics, a measurable characteristics या all of these. Now we know characteristics दो कैटेगरी के होते हैं, qualitative and quantitative. जो quantitative होता है उसे हम कहते हैं variable और जो qualitative characteristics होते हैं उन्हें हम कहते हैं attribute. तो क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए. An attribute is a qualitative characteristic. Annual income of a person is an attribute, a discrete variable, a continuous variable या फिर B और C. अब attribute होता है qualitative characteristic, लेकिन यहाँ पे annual income की बात हो रही है, वो तो एक quantitative characteristic हुआ. So it is a variable. अब इनकम फॉर एग्जांपल एक पर्सन का एनुअल इनकम है से 5 lakhs से लेके 10 lakhs इस रेंज में. तो ये जो वेरिएबल है दैट इज एनुअल इनकम, इट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द गिवन रेंज. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अ कंटिन्यूअस वेरिएबल. Marks of a student is an example of an attribute, a discrete variable, a continuous variable या none of these. अब attribute तो नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि attribute is a qualitative characteristic. marks एक variable है. अब डिसाइड करना है कि discrete है या continuous है. अब सपोज एक स्टूडेंट का मार्क्स है से इन दिस रेंज से 50 to 100. So we can have only fixed values in the given range. This variable cannot take all possible values. So you cannot have a score like 50.875 या 63.545. तो all possible values तो marks assume नहीं कर सकता. It will only assume fixed values in the given range. इसलिए ये एक discrete variable है. Nationality of a student is an attribute, a continuous variable, a discrete variable या फिर A और C.
अब नेशनैलिटी जो है वो एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है एंड वी नो दैट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो इसीलिए क्वेश्चन 8 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, एन एट्रीब्यूट। Drinking habit of a person is an attribute, a variable, a discrete variable, a continuous variable. अब drinking habit एक qualitative characteristic होती है एक person की। So we know that qualitative characteristics are called attribute. इसलिए question 9 का जो आंसर है वो है option A, an attribute. Age of a person is an attribute, a discrete variable, a continuous variable, or simply a variable. Now we know that age is a variable, it cannot be an attribute, it is a quantitative characteristic. अब suppose एक इंसान की अगर हमें suppose age group दिया है कुछ students का से 13 to 15. Now this age group में जो age है it can take all possible values from 13 to 15. तो अगर variable all possible values assume कर सकता है in a given range, then it becomes a continuous variable. अब age हम years में भी express कर सकते हैं. Further we can break down to months, then weeks, then days. तो it can take all possible values in the given range. इसलिए ये जो variable है ये हुआ आपका continuous variable. Data collected on religion from the census reports are primary, secondary, sample data A और B. अब यहाँ पे दिया है डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट। अब सेंसस रिपोर्ट होते हैं प्राइमरी डेटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। उसमें से अगर हम कुछ यूज करते हैं लाइक डेटा ऑन रिलीजन, देन इट बिकम्स सेकेंडरी डेटा। सो डेटा ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट आर सेकेंडरी डेटा। Data collected on height of group of students after recording their heights with a measuring tape. So basically यहाँ पे ये observation method use किया गया है to collect data, and observation method is one of the ways to collect primary data. इसलिए इसका सही आंसर है option A, primary data. The primary data are collected by interview method, yes. Observation method, yes. Questionnaire method, yes. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, all of these. The quickest method to collect primary data is, now we know that the quickest method to collect primary data होता है the telephonic interview method. तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, टेलीफोन इंटरव्यू। The best method to collect data in case of natural calamity is personal interview, indirect interview, questionnaire method या direct observation method. Now we know that in case of natural calamity जो बेस्ट तरीका होता है डेटा कलेक्ट करने का वो होता है पर्सनल इंटरव्यू। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्सनल इंटरव्यू। In case of a rail accident, the appropriate method of data collection is, अब रेल एक्सीडेंट के केस में हमें जो इंफॉर्मेशन मिल सकता है रिगार्डिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स या डैमेजेस वो हमें रेल अथॉरिटीज ही प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Which method of data collection covers the widest area? Now we know the method of data collection which covers the widest area is the mailed questionnaire method. However, ये जो method है इसमें response जो है rather हम बोल सकते हैं maximum non responses मिलते हैं इस method में। तो वाइड एरिया कवरेज है लेकिन रिस्पॉन्स भी लीस्ट है इसमें। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी।
The amount of non-responses is maximum in. Now we know that maximum non-response मिलता है mailed questionnaire को. तो मेल्ड क्वेश्चनर में कवरेज मैक्सिमम होता है लेकिन नॉन रिस्पॉन्स भी मैक्सिमम होता है, या हम कह सकते हैं रिस्पॉन्स लीस्ट या मिनिमम होता है. तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. Some important sources of secondary data are international and government sources, international and primary sources, private and primary sources या सिर्फ government sources. अब यहाँ पे important sources दिए गए हैं, so obviously the international and the government sources will be the most important as compared to the other options. तो इसलिए 19th का आंसर है ऑप्शन ए, international and government sources. Internal consistency of collected data can be checked when internal data are given, external data are given, two or more series are given, a number of related series are given. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. तो जब हमारे पास रिलेटेड सीरीज का डेटा अवेलेबल होगा तभी हम इंटरनल कंसिस्टेंसी उस डेटा की चेक कर सकते हैं. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. The accuracy and consistency of data can be verified by. Now we know that data की accuracy and consistency हम verify करते हैं by scrutinizing it. तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, scrutiny. The mode of presentation of data are. Now we know that there are three modes of data presentation: textual, tabulation and diagrammatic. इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. The best method of presentation of data is textual, tabular, diagrammatic, B and C. अब यहाँ पे जो आंसर है वो है tabular method, बिकॉज यहाँ पे हम डेटा को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, एंड रोज एंड कॉलम्स में हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है. ऑल्सो कंपैरिजन ऑफ डेटा बिकम्स इजी इन द टैबुलर मेथड. ऑल्सो इट इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द अदर्स. इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, टैबुलर. The most attractive method of data presentation is. अब data presentation के तीन modes होते हैं: textual, diagrammatic and tabular, और इनमें से जो सबसे attractive mode of data presentation होता है वो है diagrammatic mode. इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी. For tabulation, caption is. Now, in tabulation, caption refers to column and sub-column headings. इसलिए इसका सही आंसर है डी, the upper part of the table that describes the columns and sub-columns. So 25th का आंसर है ऑप्शन डी. Stub of a table is the left part of the table describing columns, right part of the table describing columns, right part of the table describing rows या left part of the table describing rows. अब ये अगर हमारा टेबल है तो यहाँ ऊपर तो आएंगे कैप्शंस, दैट इज द कॉलम हेडिंग्स, और लेफ्ट पार्ट में यहाँ पे आते हैं स्टब्स. स्टब्स रिफर्स टू रो हेडिंग्स और वो हम यहाँ पे लेफ्ट में देते हैं. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज. तो यहाँ पे स्टब्स आते हैं लेफ्ट में और यहाँ पे आपके रोज. तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन डी. The entire upper part of the table is known as. यहाँ दिया caption. Caption only refers to column and sub-column headings. Stubs refers to the row headings. Body वाले part में हम numerical data लिखते हैं. तो इसका सही आंसर है box head. अब box head में captions भी आते हैं, column numbers भी आते हैं, units भी आते हैं. तो ये जो table है इसका entire upper part, ये जो पूरा upper part है
वो हम कहते हैं उसे बॉक्स हेड। अब इसमें कैप्शंस आर आल्सो पार्ट ऑफ बॉक्स हेड, कॉलम नंबर्स, सब कॉलम नंबर्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये पूरा जो अपर पार्ट होता है टेबल का उसे कहा जाता है बॉक्स हेड। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन इज शोन इज, अब इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बॉक्स हेड, बिकॉज बॉडी में हम सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट इंडिकेट करते हैं। कैप्शन रिफर्स ओनली टू द कॉलम एंड सब कॉलम हेडिंग्स, स्टब रिफर्स टू द रो हेडिंग्स। सो आंसर आएगा बॉक्स हेड, बिकॉज बॉक्स हेड में हम कैप्शंस के साथ कॉलम नंबर्स, सब कॉलम नंबर्स, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये सारी चीजें हम बॉक्स हेड में इंक्लूड करते हैं। सो 28 का आंसर है ऑप्शन ए बॉक्स हेड। इन tabulation source of data if any is shown in the, इसका आंसर है footnote, बिकॉज बॉडी में हम न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंट करते हैं। कैप्शंस रिफर टू कॉलम एंड सब कॉलम हेडिंग्स एंड स्टब रिफर्स टू द रो हेडिंग्स। तो ये अगर हमारा टेबल है, इसमें स्टब्स, कॉलम हेडिंग, सॉरी स्टब्स आ जाएंगे, कैप्शंस आ जाएंगे, बॉडी आ जाएगा। एंड अगर कोई सोर्स ऑफ डेटा हमें मेंशन करना है तो यहाँ पे हम फुट नोट में मेंशन करते हैं। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फुट नोट। Which of the following statements is untrue or false for tabulation? Statistical analysis of data requires tabulation. Yes, so this statement is true. Tabulation facilitates comparisons between rows and not columns. ये यहाँ पे mistake दी हुई है. It facilitates comparison between rows and columns. तो यहाँ पे mistake है ये. So ये statement हमारा false है. आगे दिया है complicated data can be presented by tabulation. Yes, this is true. Diagrammatic representation of data requires tabulation. Yes, diagram draw करने के पहले हम data को tabulate करते हैं. सो इसका सही आंसर यानी जो अनट्रू स्टेटमेंट या जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। हिडन ट्रेंड इफ एनी इन डेटा कैन बी नोटिस्ड इन, अब टेक्सचुअल फॉर्म में हिडन ट्रेंड को ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट है या नोटिस करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज डेटा पैराग्राफ फॉर्म में दिया रहता है। टैबुलेशन में भी या टू मेक अ वेरी केयरफुल ऑब्जर्वेशन, तब आपको पता चलेगा वो हिडन ट्रेंड का। तो सबसे आसान जो तरीका है हिडन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का वो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। Diagrammatic representation of data is done by diagrams, yes. Charts, yes. Then pictures, ये भी yes है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, all of these. The most accurate mode of data presentation is, अब accurate कहा जाए या जो best method कहा जाए वो है tabulation method, बिकॉज डायग्रामेटिक में काफ़ी सारी वैल्यूज़ आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एंड इट इज़ सब्जेक्टिव, तो डायग्राम्स में एरर्स भी हो सकते हैं। टेक्सचुअल मेथड इज़ वेरी मोनोटोनस, उसे रीड करना भी चैलेंजिंग हो जाता है, तो एक्यूरेसी वो प्रॉपरली रीड करने के बाद ही आप कुछ इंटरप्रेट कर पाओगे। तो सबसे जो बेस्ट या एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन है वो है टैबुलेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। The chart that uses logarithm of a variable is known as. Now we know that जब variables की values में काफ़ी fluctuations होते हैं तब हम logarithmic chart prepare करते हैं जिसे हम ratio chart भी कहते हैं। तो इसलिए 34th का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर शोइंग मल्टीपल चार्ट्स। नो, यहाँ पे चार्ट तो एक ही बनता है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज जब हम मल्टीपल लाइन चार्ट बनाते हैं, राइट, यहाँ पे आपके वेरिएबल्स आते हैं एंड हियर यू हैव मल्टीपल लाइंस लाइक दीज, अलग अलग कलर की
लाइंस होगी। जैसे यहाँ पे आ गया आपका ईयर, एंड यहाँ पे आ गया से प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ राइस, लेकिन सबका यूनिट सेम होना चाहिए। तो सपोज द यूनिट्स इज टन्स। सो ऐसे सिचुएशन में हम मल्टीपल लाइन चार्ट यूज करते हैं। सो इट इज टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। तो सेम यूनिट होना चाहिए ये वेरिएबल्स का, एंड ये टाइम सीरीज का ही ग्राफ है, उसी का एक टाइप है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Multiple axis line chart is considered when there are more than one time series. Yes, the units of the variables are different. A भी correct है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो ये आपका ईयर आ गया, यहाँ पे आपका वेरिएबल 1, देन यहाँ पे आप एक एक्सिस बना सकते हो वेरिएबल 2। सो दीज आर मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट। ये वेरिएबल 1 का टाइम सीरीज ग्राफ होगा, ये वेरिएबल 2 का। सो यस, देयर आर मोर देन वन टाइम सीरीज, और दोनों यूनिट्स के वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं। वेरिएबल 1 का यूनिट से केजीज में होगा, वेरिएबल 2 का यूनिट से रुपीज में होगा। सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। Horizontal bar diagram is used for qualitative data. Yes, data varying over time नहीं, इसके लिए हम vertical bar diagram use करते हैं। Data varying over space, yes, this is also true. तो इसका सही आंसर है A और C। तो horizontal bar diagram जब हम बनाते हैं तो यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा आता है आपका वाई एक्सिस पे, या फिर डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, जैसे अलग अलग रीजन्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इसका बनेगा। तो इसका सही आंसर है ए और सी। सो इट कैन बी यूज फॉर बोथ क्वालिटेटिव डेटा और फॉर डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। Vertical bar diagram is applicable when data are qualitative. No, in this case हम horizontal bar diagram use करते हैं, तो option A is ruled out. Data are quantitative, yes, that is for variables, and data varying over time, this is also true. So इसका सही आंसर है, इन दोनों में से हम किसी के लिए भी vertical bar diagram draw कर सकते हैं, quantitative data या data varying over time। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी। So this is the answer, option D. Divided bar chart, और जिसे हम subdivided bar chart भी कहते हैं, is considered for comparing different components of a variable. Yes, this is true. The relation of different components to the table. Now here the table means to the whole data set. तो ऐसे कुछ दिखता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सो ये हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम ऐसे कुछ दिखता है। सपोज दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट, ये है हमारा, ये नीचे वाला फर्स्ट कंपोनेंट है, ऊपर ये सेकंड कंपोनेंट है। तो यस, यू कैन कंपेयर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स, एंड यू कैन ऑल्सो चेक द रिलेशन ऑफ द कंपोनेंट्स विद द होल। सो यस, दोनों स्टेटमेंट्स सही है, तो इसका आंसर है डी, ए एंड बी। In order to compare two or more related series, we consider multiple bar chart, yes, और the group bar chart, yes. In fact, दोनों ही same चीज के दो नाम है, तो it can be A और it can be B. So इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन C, A और B. Pie diagram is used for comparing different components and their relation to the total. Yes, देखिए, तो पाई डायग्राम में बेसिकली हम सेक्टर्स बनाते हैं अलग अलग कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हुए, एंड this helps to compare the different components and also each component to the whole, that is to the total. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
frequency distribution arranges observations in an increasing order. Usually हम frequency distribution increasing order में ही arrange करना prefer करते हैं. So yes, this is correct. Arranges observation in terms of a number of groups. Yes, हम classes बनाते हैं data values के हिसाब से. It relates to a measurable characteristic. Yes, generally हम variables या measurable characteristic का ही frequency distribution बनाते हैं. So ये सब true है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा all of these, which is option D. The frequency distribution of continuous variable is known as grouped frequency distribution. अब सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जनरली ये प्रिफर करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए. यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी. तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रिफर करते हैं डिस्क्रीट के लिए. एंड कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए वी ऑलवेज प्रिफर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कंटिन्यूस कैटेगरी का. तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. The distribution of shares is an example of frequency distribution of discrete variable, continuous variable, attribute A और C. अब जो number of shares होते हैं वो exact quantity में होते हैं. It cannot take all possible values in a given range. So basically number of shares is a discrete variable. इसलिए इसका जो आंसर है 44 का वो है ऑप्शन A. The distribution of profits of a blue chip company relates to. Now profits can take any value or are all possible values in a given range. एक range में profit can assume any value. So basically profit जो है वो एक continuous variable है. इसीलिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन B, continuous variable. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, अब यहाँ पे ऑप्शन दिए, बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन यानी कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन यहाँ पे उसकी बात हो रही है. फॉर एग्जांपल वी हैव 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन. अब इसमें लोअर लिमिट तो इंक्लूड होता है लेकिन अपर लिमिट एक्सक्लूड हो जाता है. ये 10 नेक्स्ट क्लास में काउंट होता है. सो इट इंक्लूड्स द लोअर लिमिट बट इट एक्सक्लूड्स द अपर लिमिट. तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन बी, एक्सक्लूड्स द अपर लिमिट बट इंक्लूड्स द लोअर लिमिट. तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. म्यूचुअली inclusive classification is usually meant for. अब mutually inclusive यानी discontinuous classes की यहाँ पे बात हो रही है. जैसे 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 and so on. अब ये जनरली हम प्रिफर करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए, बिकॉज अगर कंटिन्यूस वेरिएबल होगा तो एनी वैल्यू बिटवीन 9 एंड 10 विल बी मिस्ड आउट. तो कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए हम कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन प्रेफर करते हैं या जिसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं. सो रिमेंबर, म्यूचुअली इंक्लूसिव इज नथिंग बट डिसकंटिन्यूस क्लासेस एंड these are preferred for discrete variables. So the correct answer is option A. Mutually exclusive classification is usually meant for. Now mutually exclusive classification मतलब continuous classification. जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and so on. तो अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे अगर इन बिटवीन आती है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल 10.5, तो 10.5 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा. और इफ़ वी हैव से 10, तो 10 यहाँ नहीं इंक्लूड होगा बट 10 यहाँ पे डेफिनेटली इंक्लूड होगा. तो कोई भी वैल्यू जो है वेरिएबल की वो मिस आउट नहीं होती है इसमें. एंड इफ द वेरिएबल इज टेकिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द गिवन रेंज, देन डेफिनेटली it is a continuous variable.
सो कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए हम प्रेफर करते हैं ये कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन, जिसका दूसरा नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन. सो रिमेंबर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट continuous classification, and it is preferred for continuous variable, which is option B. The LCB, that is the lower class boundary, is an upper limit to lower class limit or lower limit to lower class limit. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं से 10 to 19, then we have say 20 to 29, then say 30 to 39. अब ये हमारे क्लास लिमिट्स. अब इन्हें हम कन्वर्ट करते हैं बाउंड्रीज में. ये जो गैप है इन बिटवीन वो 1 यूनिट का है, तो इसका अगर हम बाउंड्रीज में कन्वर्जन करें, दिस गैप दैट इज डी इज 1, तो d/2 जो होगा वो होगा 0.5. तो 0.5 हम लोअर लिमिट में सबट्रैक्ट करेंगे और 0.5 अपर लिमिट में ऐड करेंगे. तो ये करने के बाद हमारे क्लासेस हो जाएंगे 9.5 टू 19.5, फिर आएगा 19.5 टू 29.5, देन 29.5 टू 39 होना चाहिए, so 39.5. So we can clearly see lower class boundaries are a lower limit to lower class limit. ये नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है? सिर्फ 9.5. ये भी जो लोअर लिमिट है ये नीचे कहाँ तक जा सकता है? 19.5. तो yes, the answer is a lower limit to the lower class limit, which is option B. The upper class boundary is an upper limit to upper class limit, a lower limit to lower class limit, A and B या फिर A और B. अब जैसे lower class boundary होता है, it is the lower limit to lower class limit. तो similarly upper class boundary जो होगा that will be an upper limit to the upper class limit. So for example, say again we have 10 to 19, then 20 to 29, then 30 to 39. अब इसे अगर हम कंटिन्यूस क्लासेस में कन्वर्ट कर देंगे, क्लास लिमिट्स है, तो अगर इनकी क्लास बाउंड्रीज हम ढूंढें तो ये हो जाएगा 9.5 to 19.5, then 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5. So we can clearly see ये जो upper class boundaries है, these upper class boundaries, they are the upper limit to upper class limit. तो 19.5 maximum कहाँ तक हम push कर सकते हैं? 19.5 तक. तो इस अपर लिमिट का मैक्सिमम हम कहाँ तक पुश कर सकते हैं? इसे 29.5 तक. तो yes, the upper class boundary are the upper limits to the upper class limits. So the correct answer is option A. Class length of a class is, अब class length या class width या class height भी बोलते हैं. We know that the formula for class length is given by upper class boundary minus the lower class boundary. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द डिफरेंस बिटवीन अपर बाउंड्री एंड द लोअर क्लास बाउंड्री. लिमिट्स में इशू आ सकता है. द लिमिट्स इफ दे आर नॉट कंटिन्यूस तो उन्हें पहले हमें कंटिन्यूस करना पड़ेगा, मतलब अल्टीमेटली हमें बाउंड्रीज ही ढूंढनी पड़ेंगी. सो इसलिए द आंसर इज ऑप्शन ए, डिफरेंस बिटवीन यूसीबी एंड एलसीबी. For a particular class boundary, the less than cumulative frequency and the more than cumulative frequency add up to. तो अगर हम frequency लेते हैं, for example 2, 3, 4, 5, इसका अगर हम total frequency calculate करें, 5 and 4 9, 9 and 3 12 and 2 ये आता है 14. अब अगर इसका हम
लेस देन सी एफ कैलकुलेट करते हैं, तो ये ऊपर से नीचे में ऐड करते जाएंगे। सो 2 + 3 दैट्स 5 + 4 9 + 5 इज 14। देखिए तो ये एंड कहाँ पे हुआ, टोटल फ्रीक्वेंसी पे। और अगर इसका हम मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, यानी नीचे से ऊपर हमें ऐड करना है, तो पहले आएगा 5 + 4 दैट इज 9 + 3 दैट इज 12 + 2 दैट इज 14। तो हम कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढे, उसका एंड जो वैल्यू है वो होता है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, एंड हेंस द आंसर इज ऑप्शन ए। Frequency density corresponding to a class interval is a ratio of. Now we know that frequency density is obtained as class frequency upon class length या class width. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज अ रेशियो ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ। Relative frequency for a particular class. Now we know that relative frequency of any class always lies between 0 and 1. तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, lies between 0 and 1. ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड बोथ इंक्लूसिव नहीं हो सकता। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 नहीं हो सकती, बिकॉज 1 हुआ मतलब ये टोटल फ्रीक्वेंसी एक ही क्लास में आ गए, तो इसलिए ऑप्शन बी सी एंड डी रूल आउट हो जाते हैं। सो द आंसर इज इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। Mode of a distribution can be obtained from. Now the graphical method of obtaining mode is the histogram, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सो इफ वी हैव अ हिस्टोग्राम ऑफ दिस टाइप, सपोज ये हमारा हिस्टोग्राम है, तो यहाँ से हम इजीली मोड ढूंढ सकते हैं। ये दो पीक्स को अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ से हमारी मोडल वैल्यू निकलती है। सो दिस इज द मोड। तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। Median of a distribution can be obtained from. Now we know that median and other partition values हम easily ढूंढ सकते हैं with the help of less than and more than ogives. So इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, less than type ogives. A comparison among the class frequencies is possible only in. अब जो ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे, उस हिसाब से जो आंसर आएगा वो है बी, हिस्टोग्राम। बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व करें, हिस्टोग्राम में हम ये ऐसे ड्रॉ किया जाता है हिस्टोग्राम, तो यहाँ से हम इजीली, और ये आपके वाई एक्सिस पे होती है फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे होते हैं क्लासेस, कंटिन्यूस क्लासेस, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसीज इजीली कंपेयर कर सकते हैं। So yes, the answer is histogram option B. Frequency curve is a limiting form of frequency polygon, histogram A और B, and option D है A and B. अब frequency polygon को भी अगर हम smooth out कर देते हैं तो frequency curve हमें मिल सकता है। So yes, it is a limiting form of frequency polygon. हिस्टोग्राम से हम अगर पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं और फिर उसे स्मूथ आउट करते हैं, द रिजल्ट विल बी अ फ्रीक्वेंसी कर्व। सो इट कैन बी ए और बी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। Most of the commonly used frequency curves are. The answer is bell shape, because काफ़ी सारे distributions का जो फ्रीक्वेंसी कर्व है वो बेल शेप होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, सो काफ़ी सारे फ्रीक्वेंसी कर्व्स का जो शेप होता है वो बेल शेप्ड होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। The distribution of profits of a company follows J-shaped frequency curve, U-shaped, bell-shaped, or any of these. The correct answer is bell-shaped, because if we plot the profits
यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट्स आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे. So here we'll have the lower profits, here we'll have the higher profits, or middle portion में the average profits. So yes, most of the variables follow bell-shaped frequency curve. So इसका सही आंसर है ऑप्शन C.